नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत के इस बेहद विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है रुकमा और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत खास है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी कि खाद्य सुरक्षा की गारंटी। किसी भी राज्य में किसी भी राशन की दुकान से लाभार्थी राशन ले सकते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ चुके हैं और इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 65 करोड़ लाभार्थी राशन कार्ड के जरिए किसी भी दुकान से अब राशन ले रहे हैं। Right, well, a very warm welcome to all our viewers from me as well. As part of the Centre's Atmanirbhar Bharat campaign, Union Minister of Food and Public Distribution Ram Vilas Paswan yesterday reviewed the progress of schemes related to food grain distribution. Most importantly, the One Nation, One Ration Card scheme, as 4 new states were added to the list of states with national portability. We take a look at the progress as he reviewed it of many food welfare schemes beside this one, the benefits of the One Nation, One Ration Card scheme, the NFSA and Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, and how they have and will continue to contribute towards an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant Bharat. जी हाँ, और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बिना देर किए पूरी तरह से लागू करने का अनुरोध किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस योजना से अब तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं और शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मार्च 2021 तक इस योजना से जुड़ जाएंगे। हम लोगों का अपना टारगेट है पूरे राज्य में जो है पूरे देश में वन नेशन वन कार्ड लागू हो जाए। जो भी मजदूर जैसे मानते हैं कि जैसे बिहार का मजदूर महाराष्ट्र में चला गया है या जिन स्टेट में क्या कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी मतलब कहते हैं वन नेशन वन कार्ड है, वहां का वो अधिकारी बन चुका है और वहां की सरकार को उनको राशन क्या कहते हैं कि देना चाहिए। बिल्कुल, तो करोड़ों लोगों के लिए योजना कैसे वरदान साबित हो रही है और कैसे भ्रष्टाचार और कई सी समस्याओं से निपटने में प्रभावी होगी, चर्चा करेंगे हमारे आज के खास मेहमान के साथ। And well, joining us for discussions on the show are Sudhanshu Pandey, Secretary Food and Public Distribution, Government of India; Isha Khosla, Secretary Civil Supplies and Consumer Affairs, Government of Goa; Manish Chauhan, Commissioner Food and Civil Supplies, Government of Uttar Pradesh. Well, coming to you first, Isha ji, yesterday in his media briefing, the Union Minister highlighted 3 major points, more than that, but 3 points that he spoke about in particular, about how 4 new states and union territories have been added to national portability, taking the total to 24. He also spoke about how there is enough food grain stock in the FCI to ensure that the benefits go out to different categories. When it was announced, the One Nation, One Ration Card scheme was seen as a solution to ensure no one goes hungry, whatever be the circumstances and wherever they may be. How would you describe implementation of the scheme so far? Isha ji. Yeah. First of all, that One Nation, One Ration Card, as the Minister sir has said, Honorable Minister, it is a scheme which ensures that no one stays hungry. So wherever if a person from Bihar or UP is coming to say Goa or any other state, he will be able to take food grains from here. And Goa is one of the first 12 states which started this interstate portability under One Nation, One Ration Card. And we are able to see that people are very much willing and they are coming to take the ration. People from Maharashtra, Karnataka, Kerala, even from UP, Bihar who are in Goa are able to take this ration from here. Especially during the lockdown period when migrant laborers were stuck here, they were able to take benefit from these schemes and from any ration card they can take. Not even the people from UP, Bihar, even from people of Goa, earlier they used to be attached to only one ration shop. Now they can go to any ration shop and take ration. So it has become very useful, and now the percentage of lifting of ration has also increased because of this implementation of One Nation, One Ration Card. And we are very thankful to Government of India that they have implemented the schemes, and people from Goa, if they go outside, they will be able to take the advantage, and we are able to take care of the migrant labor through this scheme.
बिल्कुल। यहाँ पर सुधांशु जी आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वक्त करीब हम कह सकते हैं 65 करोड़ लाभार्थी इस वक्त इसका लाभ उठा रहे हैं जो 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया गया है। अगर हम आम आदमी की भाषा से समझना चाहें तो एक राशन कार्ड है, लेकिन अगर परिवार के बाकी सदस्य हैं, कई बार ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, कहीं और देश में काम करने जा रहा है, किसी राज्य में काम करने जा रहा है, तो जो घर के जो बाकी सदस्य हैं वो उस राशन कार्ड का इस्तेमाल करते थे। तो किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे? क्या एक राशन कार्ड होगा, क्या सबके पास होगा, फैमिली के हर मेंबर के लिए अलग अलग कार्ड बनेगा, या किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम जमीनी स्तर पर देख पाएंगे? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डाटा के डिजिटाइजेशन के बाद अब जो राशन कार्ड है उसमें हर सदस्य का चूंकि डाटा डिजिटाइज हो चुका है तो वो एज कलेक्टिव फैमिली भी राशन ड्रॉ कर सकते हैं और इंडिविजुअल अगर उस राशन कार्ड में 5 लोग हैं और 3 लोग 3 अलग अलग राज्यों में हैं और 2 लोग अपनी होम स्टेट में हैं तो ये तीनों कैटेगरी के लोग अलग अलग राशन अपने हिस्से का जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिजिटाइजेशन होने के बाद उस राशन कार्ड में जितने भी बेनिफिशियरीज हैं वो इंडिविजुअली अपने एंटाइटलमेंट राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ी सौगात है जो आम आदमी के लिए है और उसका इस्तेमाल वो देश में कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसा कल माननीय मंत्री जी ने बताया 24 राज्य अब तक इस क्लस्टर का पार्ट हो चुके हैं और जुलाई के महीने में पहली बार एक महीने में करीब 1800 से ऊपर ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसमें गोवा और जम्मू कश्मीर सरप्राइजिंगली उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। दोनों में 400 से ऊपर ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब 400 से ज्यादा लाभार्थियों ने दोनों जगहों पर माइग्रेंट वर्कर्स ने अपना राशन ड्रॉ किया है। तो इसका यूटिलाइजेशन अभी रिलेटिवली कम है, लेकिन जो नेशनल पोर्टेबिलिटी हेल्पलाइन नंबर है वो 7 राज्यों में अभी तक शुरू हो चुका है 14445 और 8 और राज्यों में अगस्त के महीने में ही वो शुरू हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि बहुत तेजी से इसका जो यूटिलाइजेशन है इस राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएंगे। Right. Well, Mr. Pandey, as you've told us, data digitization, a very important factor ensuring the success of this scheme. Coming to you, Mr. Chauhan, would you agree with that? How big a difference has data digitization, as has been made more and more possible because of the lockdown, the influx and, you know, the leaving in huge numbers of migrant laborers from the cities, which led to a lot of data digitization of individuals. How has this helped the implementation of the scheme in Uttar Pradesh? थैंक यू। मैं आपको बताऊं कि यूपी में 1 नेशन 1 कार्ड 1 मई से लागू किया गया। Yes. और यूपी में जो कुल लाभार्थी है वो लगभग 14 करोड़ 60 लाख है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और यह पॉसिबल हो सका क्योंकि पिछले 2 साल से विभाग ने फूड मिनिस्ट्री की गाइडेंस में डिजिटाइजेशन पर और आईटी के इंट्रोडक्शन पर काफी काम किया और हमारा सारा डेटा अभी डिजिटाइज्ड है। सारी जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स है वहां पर ई पॉश मशीन के माध्यम से ही वितरण का कार्य होता है और वर्तमान में जो 99% वितरण है वो हमारा आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हो रहा है। इसका मतलब कि वो राशन सीधे लाभार्थी को जा रहा है। तो पिछले 2 महीने में जो ये डिजिटाइजेशन और विभाग में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम फूड मिनिस्ट्री के माध्यम से हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यदि ये नहीं होता तो ये 1 नेशन 1 कार्ड की जो योजना है वो इतनी सफल नहीं हो पाती। और मैं आपको ये भी बताऊं कि लॉकडाउन के दौरान यूपी में लगभग 33 लाख जो माइग्रेंट बॉम्बे से अन्य राज्यों में काम कर रहे थे वो यूपी में आए और उनको वो यहाँ से भी राशन ले सकते हैं। और यूपी के लोगों ने केरला तक में भी इस 1 नेशन 1 कार्ड के माध्यम से राशन लिया है।
बिल्कुल, तो हमने देखा कि किस तरह से बहुत ही वरदान साबित हुई ये प्रवासी मजदूरों के लिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड की जो ये योजना थी। ईशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जानकारी मुहैया कराना भी एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि कई बार होता है कि जानकारी ही नहीं होती कि आपके जो पास जो इस योजना की आप लाभ उठा सकते हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं जो आपके गरीब तबके के लिए है, जो पंक्ति में खड़ा जो आखिरी व्यक्ति है उस तक भी उस योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन कई बार मुश्किल होता है जो कि उसको जानकारी नहीं होती। अगर वो किसी और राज्य में जाता है जहां पर वो काम कर रहा है, वो किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा विभिन्न राज्यों द्वारा कि जो तमाम लाभार्थी हैं उन तक की जानकारी भी पहुंचे कि उनके हक क्या है, किस हद तक वो हकदार है इस जो उनको योजना के तहत जो उनको फ्री खाना दिया जाएगा। ये जानकारी के लिए जैसे कि कैंपेन, भारत सरकार तो अपना कैंपेन भारत सरकार ने चलाया, मीडिया कैंपेन, साथ ही साथ राज्य सरकार भी अपना कैंपेन चला रही है प्रिंट मीडिया के थ्रू, पंचायत लोकल बॉडी के थ्रू, और साथ ही हमारे जो तालुका इंस्पेक्टर रहते हैं, सिविल सप्लाई के इंस्पेक्टर रहते हैं, वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे, होटल्स में, वहां पर जाके छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को समझा रहे हैं, उनकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कर्नाटका के लोगों को हम अपना कोई ऑफिसर लेकर जाते हैं जो कन्नड़ में ज्यादा जिसको जानकारी है, वहाँ उनकी भाषा में उनको समझाया जाता है, उनको डेमो दिया जाता है ई-पॉस मशीन जो कैसे यूटिलाइज करना है। इस तरह से हम जगह जगह पर जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ SMS भी हम लोकल लैंग्वेजेस में ट्राई कर रहे हैं भेजने का, हिंदी में भेज चुके हैं। बाकी और राज्यों से हमने कन्वर्ट करने के लिए बात करी है, तो हम उनकी भाषा में लोगों को मैसेज भी भेज रहे हैं। और अभी पॉइंट फोकस हम ज्यादा कर रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन साइट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वहां पर जाके हम लोगों को बता सकें कि ये क्या स्कीम है, जिससे उनको एक एक उनका जो भी डाउट है वो भी उनका क्लियर कर सके उसी पॉइंट पर, और उनको डेमो भी दे सके। तो इस वजह से जुलाई में हमारा जो वितरण है वो ज्यादा भी हुआ है, क्योंकि ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पे हम गए। इस बार हमने अभी होटल्स को टारगेट किया है, तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं अब वो भी आगे आ रहे हैं। हमने सभी एम्प्लॉयर्स को थ्रू लेबर कमिश्नर सभी एम्प्लॉयर्स को भी ये जानकारी पहुंचाई कि उनका जो वर्कर है वो इस स्कीम का वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ उठा सकता है। तो अब हमारे पास एम्प्लॉयर्स भी रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं कि हम उनकी साइट्स पर जाके उनके लेबर को ये जानकारी दें। जी। Right, Manish ji, coming to you again with this, a similar question. What about in Uttar Pradesh? How good has been the response, and how are you conducting the campaigns to increase awareness among the people? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे इसके लोगों में जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश स्वयं भी एक बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में स्टेट के अंदर भी काफी लोग पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लगभग 7 लाख लोग हमारी विभिन्न जिलों के मध्य पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न ले रहे हैं, और जिले के अंदर भी लगभग 50,000 लोगों ने खाद्यान्न लिया है। तो इसका मतलब ये वन नेशन वन कार्ड से विद इन स्टेट तो लोग ले ही रहे हैं, पर स्टेट के अंदर भी यदि वो अपने FPS से उनकी सर्विसेज से वो लोग संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरे FPS से ले सकते हैं। जहां तक इसके बारे में जागरूकता का सवाल है, तो इसके लिए हम लोग कैंपेन चला रहे हैं। ये विभिन्न स्तरों पे हम लोग कोटेदारों के माध्यम से ये लोगों को बता रहे हैं, हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। हमारे पास पूरा डेटाबेस है, जो लोग भी अन्य राज्यों से यूपी में अभी लॉकडाउन के दौरान आए हैं उनका पूरा डेटाबेस हमारे पास है, और लेबर डिपार्टमेंट के पास भी है। तो उनके माध्यम से हम लोग उनको SMS भी भेजते हैं, उनसे संपर्क भी करते हैं। उनके जो टारगेट ग्रुप्स हैं उनको अन्य चैनल से भी, जैसे लेबर यूनियंस हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग उनसे संपर्क करके उनको इस बारे में जागरूक करते हैं कि यदि उनके पास राशन कार्ड किसी भी राज्य का है तो वो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न ले सकते हैं। बिल्कुल। मनीष जी, आपसे सुधांशु जी, आपसे यहाँ से पूछना चाहेंगे कि इसकी पात्रता को लेकर भी अगर किसी के मन में कोई सवाल है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन से ऐसे BPL कार्ड धारक हैं, क्या उनके पास है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए है, या किस के जिनके पास अभी एक जो राशन कार्ड है क्या उनको एक नया राशन कार्ड बनाना पड़ेगा? तो इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर जो तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं उनका किस तरह से आप निवारण करते हैं? देखिए, किसी को भी किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड है वही डिजिटाइज किए गए हैं, और उसी में जो पात्र हैं वो सब लाभार्थी हैं वन नेशन वन कार्ड में भी। तो देश में जो नीचे से 67%, 67% जो पॉपुलेशन है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड है अभी।
जिसमें 75% लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाकों के हैं और 50% लोग जो हैं वो शहरी इलाकों के हैं। तो वो सब के सब जो आज राशन कार्ड होल्डर हैं वो इस स्कीम के पात्र हैं। इसके साथ साथ दो चीजें और डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जैसे आपने जाना है कि जब कभी किसी परिवार में जन्म होता है या मृत्यु होती है तो उन लोगों को नए आदमी का, व्यक्ति का नाम ऐड करवाने में और जिसकी डेथ हो चुकी है उसका डिलीट करवाने में या तो बहुत समय लगता था या बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता था। हम लोग झारखंड में और दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है जिसके जरिए जो ऑनलाइन डेथ और बर्थ रजिस्टर्स इशू होते हैं उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा हमारी जो सेंट्रल रिपोजिटरी में डाटा है उसके साथ। तो उस राशन कार्ड में ऐड नाम खुद ब खुद होगा और डिलीट भी खुद ब खुद होगा। तो लोगों को इससे बहुत सहूलियत होगी और नए लोगों के नाम भी जुड़ते जाएंगे, जो कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। लोगों को उसमें काफी दौड़ा भागी करनी पड़ती है, इनकन्वीनियंस उठानी पड़ती है। तो ये एक कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के ध्यान में रख करके शुरू किया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स जब किसी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं तो कौन सी उनकी नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप है, कौन सी कन्वीनियंट है उनके लिए, इसकी जानकारी नहीं होती है उन्हें। तो एक ऐप डेवलप हो रहा है जो अगस्त के महीने में लॉन्च किया जाएगा, जो हर माइग्रेंट वर्कर को या किसी भी राशन कार्ड होल्डर को उसकी नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप दिखाएगा कि आपके सबसे नजदीक फेयर प्राइस शॉप कौन कौन सी है और आप जहां पर भी चाहें वो आप जा सकते हैं। इसके साथ एक दूसरा और पायलट प्रोजेक्ट 5 राज्यों में शुरू किया है, जिसमें से 2 राज्यों में अगस्त के महीने में ही उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। वो है अन्नपूर्ति ग्रेन वेंडिंग मशीन। तो उससे ये फायदा होगा कि दिन में किसी भी समय अगर आप राशन एक्सेस करना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो ये जो ग्रेन वेंडिंग मशीन है, ये जो कैश एटीएम मशीन होती है कुछ उस तरह की ही होगी। शुरू में ये ईपॉस मशीन के साथ लिंक्ड होगी, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमारा प्लान है कि ये स्टैंड अलोन मशीन होगी। तो आप अपना सिर्फ राशन कार्ड नंबर फीड करके या अपना आधार नंबर फीड करके जो आपका एंटाइटलमेंट है उसका आप राशन ले सकते हैं। तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ पायलट प्रोजेक्ट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हमने शुरू किया है और अगस्त में हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एक शहर में इसका ट्रायल करें। उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका 3 जगहों पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो है इनका ट्रायल किया जाएगा। 5 राज्यों में 3 महीने के अंदर इसका ट्रायल किया जाएगा। इससे जो माइग्रेंट वर्कर्स उनको बहुत सुविधा मिलेगी। Right, Pandey ji, you've pointed out how digitization has enabled this process further. It has given it a major push. But wouldn't that lead to a number of logistical issues as well, especially Aadhaar-enabled seeding? It has brought about a number of logistical issues. How are you dealing with those? It appears that there are some doubts that when the one nation, one ration card is fully operational, it would disrupt the practice of how products are come to the dealer according to the number of people assigned to it. Actually, that would not be a problem. The reason is the exercise that we have undertaken, as Isha and Mr. Chauhan mentioned, with the states. States have identified districts where preponderance of migrant workers is very large. Yes. So we have identified such districts in Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Telangana. These are the states where most of the workers migrate to Tamil Nadu, Kerala. Yes. And then there are some states
from where these workers go. So UP, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, these are the sending states. From here, migrant workers go to various economically more prosper and more developed states and cities for their work. So this data is already available, and based on the numbers that we already have with us, additional allocation of ration to those states and to those fair price shops will be automatically built into the system. So this is end-to-end computerization of the whole supply chain, and data will give a feedback to the state and to central distribution system, and then the FCI depot from that particular cluster will make that increased allocation to that particular state. So What it about, is not difficult. Right, so what about exact data on the mobility of poor households? How have you dealt with that on the migrating to work, locating intra and interstate destinations, and the sectors employing the workers? How have you dealt with that so far? Actually, initially that was a challenge, but as some of the other panelists have just mentioned, states government have done phenomenal job. Each crisis actually brings up solutions also. So when the migrant crisis arose, then there was a challenge. Yes. And we all were trying to find out what is the number, where the movement is, and how do we reach out to them. But then each state, we interacted with them, with their labor department, with their district administration, and finally now state governments have developed a fairly robust database. Each state exactly knows in which district, from which area migrant workers are coming. And as was mentioned by Karnataka speaker, they are trying to reach out to them in their local language and trying to make them aware as to what are their entitlements, what are the benefits that they are entitled to, and how they can make those, they can avail those benefits. So states have done a phenomenal job. The Labour Ministry in Government of India has done a very good job. They are collating all data of organized labor, labor which is in the informal sector, and all this is finally leading to a very robust and sound database system which will be shared with all stakeholders. बिल्कुल ईशा जी यहाँ पर आपको जोड़ना चाहेंगे। जिस तरह से हमने बात करते हैं अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले का इसका इतिहास रहा है और समय समय पर इसका स्वरूप बदलता रहा है। और आज जो हम इसका स्वरूप देख रहे हैं, जो लगातार हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इसके डिजिटाइजेशन को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर आ रहा है जब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरी इस वितरण प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो पूरा डिजिटलीकरण किया जा रहा है इस पूरी प्रणाली को, जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनकी पहचान करने में, जो कई तरह की और भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है ये योजना? जैसा कि आपने बताया, डिजिटाइजेशन से अभी हम आधार से लिंक किया है, इसमें एक एक व्यक्ति का, एक एक लाभार्थी का आधार नंबर सीड किया जा रहा है। इससे दो फायदा है। एक तो हमारा जो बोगस राशन कार्ड है वो काफी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, बिकॉज पूरा 100% डिजिटाइजेशन हो गया है। दूसरा, इससे लाभार्थी को भी एडवांटेज है। जैसे हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, अब हर व्यक्ति राशन कार्ड लेकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, पर आज हर व्यक्ति अपना आधार कार्ड लेकर जा रहा है। तो आधार से जब राशन कार्ड लिंक हो जाता है, वो किसी भी राज्य में जाकर अपना आधार नंबर देकर अपना ऑथेंटिकेशन कर वहां से अनाज ले सकता है। तो डिजिटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी तो आ ही रही है, साथ साथ लोगों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि लोगों को अब राशन कार्ड कैरी करने का जरूरत नहीं है। लोगों का डेटा डिजिटाइज्ड है, वो कहीं से भी जाकर कहीं पर ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हम लोगों का भी बहुत ज्यादा, हम अन्य जो लोग पहले छूट गए थे और बोगस रहते थे, या कई बार लोग जैसे डेथ हो जाता है या अन्य कुछ घटना हो जाती है, उसको नहीं निकाल पाते थे, पर अब डिजिटाइजेशन होने के कारण एक बार जब भी हमने शुरू किया तो हमारे लाभार्थी जो थे हम उसमें और ऐड कर पाए, क्योंकि जो पुराने लाभार्थी जो नहीं एलिजिबल थे,
या जो इनका डेथ हो गया या जो रूल आउट हो गया उनको निकाल के हमारे पास कोटा बचने पर हम बहुत सारे लोगों को इसके अंदर और लेकर आ पाए। तो डिजिटाइजेशन से मुख्य रूप से स्टेट हर व्यक्ति को भी और राज्य सरकारों को भी फायदा हुआ है। Right, coming to you, Mr. Chauhan, well, it's not just PDS, but most anti-poverty, rural employment, welfare and food security schemes were historically based on domicile-based access and restricted people to access government social security. We see, the people of India see this One Nation, One Ration card scheme as a major game changer in this regard. But do the beneficiaries, mostly migrant laborers, vulnerable sections of society, how far have they been able to use this scheme? How far have they been able to access its benefits in UP, which is perhaps one of the few states which is already enjoying its benefits? देखिए, इसमें जो भी माइग्रेंट्स आए थे यूपी में, उनके लिए हमने दो काम उनके लिए किए हैं। पहला तो ये कि उनके लिए यदि राशन कार्ड नहीं थे तो हमने एक अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड बना दिए। इस तरीके से करके हमने लगभग 11 लाख राशन कार्ड बनाए हैं, जिसमें लगभग 30 लाख यूनिट्स को कवर किया गया है। साथ ही भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना भी दी थी, जो कि प्रवासियों के लिए ही थी। तो उसमें भी यदि वो एनएफएसए में कवर नहीं है या उसके पास कार्ड एनएफएसए का नहीं बनाया जा सकता या किसी कारण से नहीं बना है, तो उसको आत्मनिर्भर भारत में हम लोग को तत्काल हम लोग राशन दे सकते थे। तो इस तरीके से हमने सभी प्रवासियों को राशन मुहैया कराया। और ये बहुत ही अभी फूड सिक्योरिटी में लॉकडाउन के दौरान जरूरी था, क्योंकि ज्यादातर जैसा आपने कहा ये लोग वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं और इनको इस समय राशन देना बहुत ही आवश्यक था। ये हम तभी कर पाए जब ये हमारे पास आत्मनिर्भर भारत में भारत सरकार ने ये योजना दी और साथ ही एनएफएसए में हम लोग राशन कार्ड ये डिजिटाइजेशन होने के कारण जल्दी बना पाए। Right. What about other schemes, like going forward? Now, of course, the lockdown is still in place in many sectors, for example, schools. What about schemes like midday meal and all? How do you intend to bring that under this kind of, do you intend to bring that too as well under this kind of national portability? मिड डे मील योजना तो ये शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाती है और शिक्षा विभाग अपना डिजिटाइजेशन कर रहा है। वो भी आधार बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आधार बेस्ड डेटाबेस उनका बन रहा है। और जो विद्यालयों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त होता है वो भी वो ई पोस्ट मशीन के माध्यम से वो अपना अलग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो मिड डे मील में भी इसी प्रकार से पारदर्शिता शिक्षा विभाग द्वारा लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, जिस तरह से हम अपने पीडीएस सिस्टम की बात करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं, तो उसमें कई बार कई लीकेजेस की भी बात हुई और लगातार उसको रिफॉर्म्स उसमें करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसकी कड़ी में यहाँ पर हम एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड का यहाँ पर आगे काम आता है। किस तरह से आप देखते हैं कि और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं इस इतने व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जहाँ पर हमारा लक्ष्य यहाँ पर है कि कोई भी भूखा ना सोए और जो पूरी तरह से जो हंगर है, जो भूख वाली बात है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और किन तरह के और रिफॉर्म्स की तरफ हम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? रिफॉर्म जो है वो किसी भी सिस्टम का बहुत इंटीग्रल पार्ट है और रिफॉर्म करना अति आवश्यक इसलिए होता है कि जो भी कमियां कमजोरियां आप उस स्कीम में देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे, उनको आप कैसे दूर करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, इसके लिए हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। एक तो स्कीम का ग्राउंड के ऊपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, IIM, IITs, स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ हमने करना शुरू किया है। और अभी हमारा जो इवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ है 18 से 18, 19, 20 का, जो हमने ट्रांसपेरेंसी के तौर पर जो डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फूड की वेबसाइट है, हर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सुझाव, सजेशंस, कमियां दिखाई दी हैं, वो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दी है और पब्लिक डोमेन में वो अवेलेबल है। और उससे बहुत सारे सुझाव लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि इन समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाए। और टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा टूल है इन रिफॉर्म्स के लिए। एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन में
जो प्रोक्योरमेंट होता है पीडीएस के लिए जो एफसीआई करती है, उसमें सारे अकाउंट्स में फार्मर्स के पैसा जो है वो डायरेक्ट जा रहा है। कितने फार्मर्स को कितनी जमीन कितने प्रोड्यूस के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो भी आज डाटा हमारे पास अवेलेबल है। वहां से उसका फिर अन्न वितरण पोर्टल वो भी पब्लिक डोमेन में है, उसके माध्यम से पूरे देश में आप देख सकती हैं कि किस दिन किस राज्य में कितना राशन लिफ्ट किया गया है, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और वो आप फेयर प्राइस शॉप तक के लेवल पे जा सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट टूल which actually encourages reform, and we have to be open to ideas, open to suggestions, and constructive criticism has to be taken in its stride. And whatever suggestions we receive, either from civil society or from NGOs or public, we take them, evaluate them, and then whatever changes are required are undertaken. You just mentioned about midday meal program, which Manish correctly answered. What we are doing, we are not only covering midday meal program across the country, we are also covering ICDS center. And for both children in the ICDS centers and in the midday meal program students, ration is being provided to respective social welfare departments and the education department through the public distribution system. And now we are covering this entire chain through fortification of rice, which is basically supplementing micronutrients which are otherwise deficient in our diet, and as a result of which they lead to a lot of ailments and adverse impact on health. So with FSSAI, with the Ministry of Women and Child Development and school department, we have started this project very recently, and next week, actually on 17th, FSSAI is doing a country-wide webinar on this, where states will be joining, private industry will be joining, MSME will join, that how do we scale up the blending of rice with these micronutrients, and we are able to supply to all ICDS centers and our schools for the midday meal program. So reform is a continuous process. Data has done one very beautiful thing. Data ने convergence को possible कर दिया है. Earlier departments used to work in silos, but now since the data is common, most of the departments are trying to share data and trying to converge their various schemes through the same database. So convergence is one of the biggest advantages of linkage with the Aadhaar, and I think it is going to actually give us tremendous results for various schemes in coming years. बिल्कुल, और पारदर्शिता की बात यहाँ पर की उन्होंने। हमारे साथ इस वक्त संतोष ठाकुर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आत्मनिर्भर भारत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इस वक्त हम बात करें तो 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर देखें तो किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं आप, किस तरह से इसको अमली जामा पहनाते हुए आपको नजर आ रहा है, अगर आप निकल के देखें तो? अगर आप वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं स्वयं बिहार से आता हूं, और जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि बिहार से काफ़ी लोग बाहर नौकरियों के लिए जाते हैं, तो उन लोगों से जब हमारी बात होती है तो ये सामने आता है कि उनको इसका फायदा हो रहा है। हाँ, कुछ जगह ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे राशन दुकानदार, क्योंकि फाइनली मेंटेलिटी बदलने में हमारे को काफ़ी समय लगेगा। राशन दुकानदार उनको थोड़ा तंग करते हैं कि भाई अभी आपके हिस्से का राशन नहीं आया है, हमारे पास तो जितना राशन पहले आता था उतना ही आया है, तो आपको कैसे दें। लेकिन ये कुछ जगह आ रहा है और कुछ जगह उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दुकानदार जो है उनको जब वो जाते हैं तो उनको राशन देते हैं। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी समस्याएं एक दो जगह आ रही हैं, दिल्ली में या महाराष्ट्र में, गुजरात में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम सामने आई है कि दुकानदार कहते हैं भाई हमारे को अभी बढ़ा हुआ राशन नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मेरे को लगता है
कि आने वाले समय में, क्योंकि जब भी कोई स्कीम हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं और बाद में वो ठीक हो जाती है, लेकिन ये योजना सोच के स्तर पर भी अच्छी है, क्रियान्वयन के स्तर पर भी अच्छी है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे अभी मेरे को कुछ साथियों ने बताया महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह से और इवन दिल्ली में कि सेक्रेटरी सर खुद जो है कई जगह लोगों से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, और ये पहली बार ही हो रहा है कि केंद्र सरकार में कोई सचिव जो है उसके लिए ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट ले रहा हो। Right. Right. Santosh ji, the target is to end hunger by 2030 when we talk about sustainable development goals too. Well, in India, that state of hunger is very poor, especially when it has been measured by global index levels. Do you feel that this system, One Nation, One Ration card, is the solution to dealing with the challenges that the government has faced all these years down the decades in dealing with the problem of hunger? अब मुझे लगता है कि 2030 से पहले ही कुछ मेरे को लगता है कि ये स्कीम जो है हंगर को खत्म करने में काफी कारगर रहेगी। और अगर आप मतलब ग्लोबली रैंकिंग्स की बात करें तो दिस इज माय व्यू, आई मे बी रॉन्ग बट आई डोंट थिंक सो, लाइक आई विल बी रॉन्ग बिकॉज समटाइम्स द वेस्ट कंट्रीज they have some their some people or some section of the society of west world, they have biased vision about India। तो उनको कई बार ये लगता है कि भाई वो पूर्वाग्रह से ग्रसित भी रहते हैं और इंडिया को लेकर कई ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और उसकी रैंकिंग को कई क्षेत्रों में वो गलत भी दिखाते हैं। Right. और उनके कई सारे जो कथित बुद्धिजीवी हैं वो अपने को ये बोलते हैं कि भाई इंडिया में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जबकि अगर आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया ने हर चीज में तरक्की की है। तो मेरे को लगता है 2030 तक हंगर से हम पूरी तरह से मुक्त भी हो जाएंगे, और ये योजना उसमें एक प्रभावी कदम रहेगी। क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई मजदूर शहर में चला गया, नौकरी चली गई, तो राशन भाई उसको रियायती दर पर नहीं मिल पा रहा था, उसको महंगा राशन खरीदना पड़ता था। और इसमें क्योंकि यूनिट वाइज आप ले सकते हैं राशन, अगर 5 लोग हैं तो 3 लोग बिहार में ले सकते हैं, एक आदमी महाराष्ट्र चला गया और एक दिल्ली, तो वो महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ले सकते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये योजना काफी प्रभावी रहेगी। जी, ईशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा जी, जिस तरह से संतोष जी ने तमाम चुनौतियों के बारे में बात की, जो समस्याएं जमीनी स्तर पर आई उनके बारे में बात करी, किस तरह से जो तमाम राज्यों में जहां पर इसका सफल क्रियान्वयन हुआ है उनसे हम सीख ले रहे हैं, और जो तमाम समस्याएं सामने निकल कर आती हैं, जैसे नकली दस्तावेज हो या नकली राशन कार्ड हो या तमाम तरह की इस तरह आती हैं, उनको किस तरह से दूर करने में मददगार साबित हो रही है, किस तरह से सरकार की कोशिश हो रही है? जैसा कि हमने बताया, डिजिटाइजेशन जो है पहला स्टेप है नकली राशन कार्ड निकालने के लिए, जो कि हमने राज्य सरकार में कंप्लीट कर लिया है। और भी नए जितने भी राशन कार्ड आते हैं उसके अंदर हम आधार सीडिंग कर रहे हैं। और शुरू में जब इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी स्टार्ट हुआ तो लोगों को जानकारी नहीं थी, और लोगों में जैसे अभी शुरुआत में आपने कुछ प्रश्न किए कि क्या नया राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, क्या नई जगह पर रजिस्टर कराना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों को कुछ सवाल थे। बट अब जैसे जैसे कैंपेन बढ़ रहा है, लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं, ये डिफिकल्टी कम हो रही है। और कुछ जैसे जैसे हमें डिफिकल्टी आती है, जैसे कई बार उन्हें ये डाउट था कि अगर हम यहाँ से राशन ले लेंगे तो हमारा परिवार जो हमारे गाँव में है क्या उसको राशन नहीं मिलेगा। तो अब भारत सरकार ने ये भी व्यवस्था करी है कि वो आधा राशन यहाँ से ले सकता है, बाकी राशन उसका परिवार वहाँ से ले पाएगा। तो जैसे जैसे हमें इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती रहती है, हम उसको फ्लैग करते रहते हैं, और राज्य सरकार और भारत सरकार की कोशिश से हम उनको रूल आउट कर लोगों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। Right. Well, coming to you, Mr. Manish, what about in Uttar Pradesh? How are you dealing with problems of miscalculated digitization? You know, in certain areas there are false details perhaps, and there's a lot of leakage as well. How are you dealing with those issues? देखिए, यूपी में जैसा मैंने बताया लगभग हमारे पास 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड है अभी, और इसको और कंटिन्यूअसली हम इसको डेटा को और एनालाइज करते रहते हैं कई लेवल पे, और उस डेटा को सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा स्टेप है वो आधार सीडिंग का है। यदि आधार सीडिंग और हमारे राशन कार्ड में होल्डर का नाम और आधार का नाम मैच कर जाता है, इसका मतलब वो आदमी एग्जिस्ट कर रहा है और उसका बायोमेट्रिक है। तो ये हमारा एक ट्रांसपेरेंसी लाने का सबसे बड़ा माध्यम है।
इसके अलावा कई यूनिट्स भी इसमें हो सकता है कि कई राशन कार्डों में ज्यादा ऐड होती है, तो हम धीरे धीरे अब यूनिट्स को भी हम चेक कर रहे हैं, उसमें भी सीडिंग करा रहे हैं, और अभी हमारा सीडिंग प्रतिशत लगभग 95% उत्तर प्रदेश में है। और हम लोग लगातार उनकी चेकिंग कर रहे हैं, ऐसे राशन कार्ड की जो लग रहा है कि जिसमें आधार डुप्लीकेट है या आधार है ही नहीं, तो उनको हम कंटिन्यूअसली चेक करते हैं अपने फील्ड जो हमारे वर्कर्स हैं उनके माध्यम से, और हम इस डेटा को सही करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर अब आज के समय ये डेटा हमारा काफी हद तक सही हो चुका है, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लगातार इसको और सही करते हैं, सही टारगेटिंग करते हैं, जो पात्र लोग छूटे हुए हैं उनके लिए प्रयास करते हैं कि वो हमारे इस सिक्योरिटी नेट में आए, और जो अपात्र हैं हम उनको लगातार बाहर भी करते हैं। फिर लगातार कई ऐसे लोग हैं जो मृतक हो जाते हैं, उनकी जगह नए लोगों का हमें सिलेक्शन करना होता है, या उनके फैमिली मेंबर्स को रिप्लेस करना होता है। तो कंटिन्यूअसली हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि सिस्टम में किसी भी तरीके से कोई गलत व्यक्ति लाभ ना ले और सही लोगों को इसका लाभ। Right, Mr. Chauhan, and how about evaluating the benefits? How far the benefits have actually reached the beneficiaries? How far the scheme has been successful? Because as we just were speaking with Mr. Santosh Thakur, he said we cannot really rely on global index figures, global hunger index figures, figures and so on. So how would you evaluate the success of this scheme in dealing with leakages and dealing with the problems posed by the previous such food security schemes? देखिए, भूख कम करना है, ये हमारा एक SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और उसके लिए ये स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारे लगभग 14 करोड़ 60 लाख लोग इससे जुड़े हैं। इसका मतलब लगभग 70% जो हमारी आबादी है वो इससे कवर है, और ये 70% वो है जो कि सबसे निचले वाले हैं। इसमें जो 30% अब छूटे हुए हैं वो लोग वही है जो कि अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं। तो उनको फूड सिक्योरिटी देने में इस स्कीम का बहुत अहम रोल है, और हम लोग लगातार हर महीने उनको राशन पहुंचाते हैं, निश्चित तिथि को पहुंचाते हैं। और अभी लॉकडाउन के दौरान हमने 2 साइकिल कर दिए थे। पहले साइकिल में हम लोग NFSA का वितरण करते थे, दूसरे साइकिल में हम लोग PM प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण करते थे। तो लगभग 15 लाख मीट्रिक टन अनाज हम लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से उठाकर, FCI से उठाकर हम लोग अपने गोदामों, और उसके बाद हम गांव-गांव तक जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स है वहां तक पहुंचा रहे थे। तो इसका वॉल्यूम आप देखें कि इतने लोगों तक यह खाद्यान्न पहुंचाना, और उनको यह सुनिश्चित करना कि किसी तरीके से कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे, उसको अनाज मिले। और आप ये भी देखेंगे कि वर्तमान में यदि हम भूख से होने वाली डेथ्स को देखें तो वो बहुत ही कम है, वो नेग्लिजिबल है। हाँ, अब इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस हमारे हैं कि हम उनको कैसे न्यूट्रिशियस फूड दें, और कुछ और भी कई कंपोनेंट है जो कि उसको खाने में मिलने चाहिए। तो इसमें अभी चना भी हम ऐड किया है भारत सरकार ने, कि हम PMGKY में 1-1 किलो चना भी सभी लाभार्थियों को दिया गया है। राइट। और सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुधांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम तब से बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर रहेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो बहुत बेहतरीन तालमेल रहा, जो समन्वय रहा, उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। अभी तक के अनुभव के बारे में भी बातचीत हो रही है, तो किस तरह के अगर आपको कुछ अच्छे उदाहरण सामने आते हैं जिन जिन राज्यों में 4 राज्य तो अभी हाल ही में जुड़े हैं, लेकिन जो 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जिसमें लागू की जा चुकी है योजना, वहां से अगर कुछ अच्छे अनुभव आपके सामने आ रहे हैं, अच्छे उदाहरण सामने आ रहे हैं जो कि और इस योजना को और भी ज्यादा सशक्त रूप से इसके अमली जामा पहनाने में और मददगार साबित हो रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छे सुझाव हम लोग ऑलमोस्ट हर वीक सभी राज्यों के साथ चर्चा करते हैं, और जैसा अभी बताया संतोष जी ने, हम कोशिश करते हैं कि गांव के लेवल तक, पंचायत के लेवल तक इंटरेक्शन को ले जाएं, और हर सिचुएशन को डील करने के लिए खुद को तैयार करें। अभी ऐसा ही एक हमने इंटरेक्शन रखा था पूरे देश के जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, ये क्रिटिकल लिंक है, जो लाभार्थी है उस तक राशन पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल। तो हमने सभी राज्यों के साथ जो उनके प्रतिनिधि थे उनके साथ बात की, और हमने इस प्रोग्राम के, इस योजना के महत्व को उनको समझाया, और उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए। उन्होंने सुझाव दिए
किस तरीके से उन्होंने कोविड-19 के रहते हुए किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, क्या नए नए उन्होंने मेथड्स डिवाइस किए। बहुत से राज्यों ने डोर स्टेप डिलीवरी की, स्पेशली एबल्ड लोग थे, उनके घरों तक जाकर के राशन पहुंचाया ऐसी स्थिति में। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं सभी राज्यों में, दूर दराज के एरियाज में किस तरीके से उन्होंने एयरफोर्स के माध्यम से, म्यूल्स, याक के माध्यम से राशन को पहुंचाया और वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कराया। और वो लोग कोशिश कर रहे हैं, एक हमारा ग्रुप है उसमें, वहां से रेगुलर वो लोग फोटोग्राफ्स, इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और सभी राज्य इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसमें केंद्र और राज्य सरकार को बहुत मिल के काम करना है। और जब तक ये दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो इतनी सक्सेस नहीं मिलती। तो आगे भी हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन है उससे भी बेहतर होगा। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिलर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें पब्लिक भी स्टेक होल्डर है। ऐसे भी उदाहरण सामने आते हैं, जैसे लेपर्स है, उनके लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। तो भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसी अगर कहीं पर समस्या है तो वहां पर आप इवन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इंसिस्ट ना करें, क्योंकि वो डाटाबेस आपके पास है, आपने वेरीफाई फिजिकली किया हुआ है, तो आप उनको राशन दे सकते हैं। और राज्य सरकारें इसके ऊपर बहुत सिंसियरली इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बेहतर होगा। और जो आपने एसडीजी गोल्स की बात की, मुझे लगता है कि उससे पहले ही हम नो हंगर टारगेट जो है वो देश में अचीव कर लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय या डाउट नहीं है। Right, coming to you, Santosh ji, as Sudhanshu ji has said, fair price shops are a vital link. What are the challenges that you saw people in Bihar, migrant laborers in Bihar, one of the states that has the maximum number of migrant laborers who returned home? How were they dealt with? And also in terms of nutrition, have you seen how much focus have you seen on nutrition, and has it changed the standards of nutrition, the category according to which nutrition is decided, has it changed over the years? और न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो अभी उसका, क्योंकि मनीष जी ने जैसा बताया कि अभी चना देना इन्होंने शुरू ही किया है, तो अभी न्यूट्रिशन तो मेरे को लगता है कि बिहार में या बाकी जगह भी गवर्नमेंट डिसाइड कर ही रही है कि किन चीजों को इसमें जोड़ना है। लेकिन जहां तक ये बात है कि बिहार में किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो चैलेंजेस वहां पे कई तरीके के हैं कि जैसे इन्फ्लक्स हो गया वर्कर्स का ऑल ऑफ सडन, राशन उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ, या दुकानदार जो है उसको डिनाई कर रहे हैं कि आप तो चले गए थे बाहर तो आपका राशन कार्ड हमने डोरमेंट कर दिया। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कई जगह ये भी देखने में आया है कि राशन पर्याप्त जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन वो बट नहीं रहा है। तो उसमें मेरी सलाह यह है कि अभी सुधांशु सर बता ही रहे थे कि इन्होंने पंचायत लेवल तक लोगों से बात की है, लेकिन उसमें मेरा ये सुझाव है कि ऐसा कोई नंबर या SMS होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको इस महीने का राशन मिला या नहीं मिला, और आदमी उस पर क्लिक करे और अपना फीडबैक भी दे पाए, तो उससे डिलीवरी और ज्यादा सुनिश्चित होगी। क्योंकि सरकार की नीयत भी ठीक है, योजना भी ठीक है और इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार करना चाहती है, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल्स की इसमें बात होती है और करोड़ों करोड़ दुकानदार हैं, तो आप ये कह नहीं सकते कि कहाँ पे कौन दुकानदार कैसा है। और अगर एक भी आदमी को पूरा राशन नहीं मिलता है तो सरकार की पूरी योजना जो है उसको लेकर लोग एक नकारात्मक बात करने लग जाते हैं। जबकि सरकार, केंद्र सरकार के स्तर पे अगर आप देखें, जब से मोदी सरकार आई है उसका ये मानना है कि हर आदमी के पास राशन पहुंचना ही चाहिए। और यही वजह है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजना आई, जिसमें इंडिविजुअल के लिहाज से भी राशन दिया जा रहा है, तो राशन की दुकानों पे एंड कंज्यूमर तक वो पहुंचे और सरकार को भी ये पता लग जाए कि किसने राशन लिया।
उस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो और न्यूट्रिशन अभी मेरे को लगता है कि सरकार बढ़ाएगी, जैसे चना कर दिया, दाल कर दिया और कई चीजें आ रही हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन की तरफ भी जाएंगी। और राशन पहुंच रहा है लेकिन उसकी डिलीवरी हर आदमी को हो रही है, ये बस सुनिश्चित करना होगा हमारे को, जिससे कि हम 2030 से पहले भूख रहित देश हो जाएं और हर आदमी को पर्याप्त राशन मिल पाए। बिल्कुल, तो यहीं पर बात सामने आती है पारदर्शिता की, कि पारदर्शिता के चलते और डिजिटलीकरण के चलते हम किस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर लाभार्थी तक इस योजना का लाभ पहुंचे। ईशा जी, आपसे अगर हम जानना चाहें आपसे कि किस तरह से जो तमाम तरह के समस्याओं की जो जिक्र किया जो जमीनी स्तर पर आते हैं, तो कई उसमें बीच में ये बात निकल कर आई थी कि अगर आधार कार्ड से हमारा लिंक ना हो राशन कार्ड, तो क्या हमें राशन मिलेगा, या फिर हम प्रवासी मजदूर है, हमारे पास ना आधार कार्ड नहीं है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, तो किस तरह से हम इस योजना में अपना नाम डलवा सकते हैं, हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतनी बड़ी आबादी के बीच कई ऐसी हजारों लाखों समस्याएं भी आती हैं जिनका निवारण यहाँ पर सरकार को करना होता है। किस तरह से उस दिशा में कोशिश की जाती है और उनका निवारण होता है? जैसा कि बताया, जो भी जमीनी स्तर पे आता है, एक हमारे लोगों का ऑलरेडी एक नेशनल नंबर है 1965, कोई भी उस पर कंप्लेंट कर सकता है अगर किसी को राशन नहीं मिलता है या ग्रीवेंस के लिए। दूसरी बात, जैसे आपने बताया, अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको राशन का इंटाइटलमेंट डिनाई नहीं किया जाता है, राशन कार्ड बनाया जाता है, उसमें भारत सरकार का प्रावधान है, या तो वो अपना इनरोलमेंट नंबर दे सकता है, नहीं तो वो जाकर इनरोल कर सकता है। किसी को सिर्फ इस वजह से राशन नहीं रोकते हम लोग कि उसके पास आधार नहीं है, और हम कोशिश करते हैं उसको साइमल्टेनियसली दूसरे विभाग से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से उसका आधार कार्ड भी बनवा दिया जाए, तो उसको उस तरह से भी गाइड किया जाता है। अब जैसा कि सेक्रेटरी सर ने बताया, एक कन्वर्जेंस हो रहा है सभी डिपार्टमेंट्स का आधार लिंकिंग से, सो हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वो अपना आधार को लिंक करा सकते हैं। या जैसे कोई प्रवासी मजदूर है, हम यहाँ गोवा राज्य में जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए, उनके पास राशन कार्ड जैसे नहीं था, लेकर नहीं आते थे, आधार कार्ड नंबर नहीं आता, तो हम लोग ने उस दौरान उन लोगों को फोन करवाया, खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, कलेक्टर, हमारे इंस्पेक्टर्स के थ्रू, उन लोगों के घर पे किसी से फोन करके हमारे इंस्पेक्टर्स ने उनका राशन कार्ड नंबर नोट किया और उस तरह से हमने उनको वितरण किया। तो जैसे जैसे समस्या आती रहती है, हम उनको इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि आप अपना राशन कार्ड नंबर, हम उनको हेल्प करते हैं। और अगर कोई गोवा का प्रवासी है, उसका यहीं पर राशन कार्ड में हम सीडिंग कर देते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे अदर पैनलिस्ट ने बताया, आधार सीडिंग एंड अपडेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, so we are continuously updating it so that anybody can, न्यू रेशन कार्ड ऐड होता है, डेथ होता है, या किसी तरह से अगर किसी के आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, गलत नंबर ऐड हो गया है, मोबाइल नंबर अपडेट होना है, वो कंटिन्यूस अपडेशन हम कर रहे हैं। और हमारा विलेज लेवल पे हमने विजिलेंस कमिटीज बनाया हुआ है, जो विजिलेंस कमेटी है वो राशन के वितरण को देखता है। कोई भी उसे कंप्लेंट है तो उसे वहाँ पे कंप्लेंट भी किया जा सकता है। तालुका लेवल पे कमेटी है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है, फिर स्टेट लेवल पे ग्रीवेंस सेल है। तो बहुत एक स्टेज बाय स्टेज सिस्टम है ग्रीवेंस रिड्रेसल का, कि कोई भी इंसान कहीं पर भी जाकर ग्रीवेंस अपना जो है रिड्रेस भी कर सकता है। बिल्कुल, तो विभिन्न स्तरों पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है ताकि हर लाभार्थी तक उसका लाभ पहुंचे और राशन पहुंचे। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर राशन पहुंचाने की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फ्री खाना पहुंचाने की बात नहीं है, ये वो योजना है जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने में बहुत बड़ा कदम उठा रही है, साथ ही सामाजिक भेदभाव को खत्म करने में भी ये भी इसका एक पहलू है जो सामने आ रहा है कि किस तरह से जो तमाम ऐसे वंचित तबके के लोग हैं, जो वनरेबल सोसाइटीज हैं, महिलाएं हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर सामाजिक भेदभाव की बात होती है उसको खत्म करने में भी ये योजना कई जगहों पर काफी कारगर साबित हो रही है। कोई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिले, ऐसे आपको अनुभव हुए? देखिए, फूड हमारी बेसिक नीड है और फूड हर व्यक्ति को मिलना, मतलब तो ये हम प्रशासन के लिए चुनौती है कि हम उसको खाना उपलब्ध करा पाए। यदि उसको खाना उपलब्ध होगा तो बहुत सी जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे चाहे कोई अपराध हो छोटे मोटे, या कोई आप कह रहे हैं कि जैसे कई लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता तो वो कोई ऐसे कदम उठा लेते हैं, या कोई सुसाइड हो रही है, डेथ्स हो रही है, तो ये एक सोशल सिक्योरिटी के लिए ये फूड सिक्योरिटी बहुत ही इसका अहम पार्ट है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम सभी लोगों को इतनी बड़ी संख्या में हम लोग कैसे हर महीने राशन उन लोगों को दे सकें। और इसमें जो ज्यादातर लोग कवर है वो वल्नरेबल सेक्शंस के ही हैं, वो एससी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इसमें गरीब लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो कि जिनका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है,
तो उनके लिए भी हम विकलांग लोग हैं तो हम उनके लिए सुनिश्चित करते हैं कि घर पे जाके भी उनको राशन पहुंचवाते हैं, कि उनको घर पर जाकर भी उनको पूरा राशन मिले। हमारा जो फेयर प्राइस शॉप्स ओनर है वो उनके घर जाता है राशन लेके और उनको वहीं पे रिसीव कराता है। तो ये जो इतना बड़ा सिस्टम है ये इसमें कई लोगों के, जैसे हमारे सबसे ज्यादा जो अंतिम कड़ी है जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स ओनर है, जो हमारे लाइसेंसी होते हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वो इतने बड़े सिस्टम को रन करने में वो हम लोगों की मदद करते हैं। और गांव इसमें ग्राम पंचायत का भी रोल होता है, वो लोग लगातार निगरानी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोगों को सही मात्रा में और सही तरीके से उनको उनका जो राशन का जो उनका अधिकार है वो उनको मिले। Right. We are running out of time, but coming to you very quickly, Mr. Pandey. Well, 4 new states were announced as being added, which makes the number 24 of states which have national portability now, where this One Nation, One Ration Card scheme would be applicable. The idea is, the vision is to make it applicable to all states by 2021. What are your thoughts as the country moves forward in this direction? We are looking at a new future for India, an Atmanirbhar Bharat and food security. How far would you say that would go towards ensuring this? Food security is our target, and August we have covered 24 states. In September we will be adding 2 more, Ladakh and Lakshadweep. In October we will add 3 more, Tamil Nadu, Chhattisgarh and Delhi. And then in December we will be adding Meghalaya, and then in January our target is to cover the remaining states and UTs. So we are planning to actually complete this scheme ahead of its target. Yes. So we are targeting January instead of March, so that we generate sufficient awareness and we are able to actually ensure that its usage goes up. At present, even in 24 states, while the intra-state transactions have crossed 1 crore, the interstate transactions are just about over 9,000. So our first target is that interstate transactions go up. States are playing very critical role. They are going to, through the district administration, to employers, to fair price shops, generating that awareness, and I'm sure we will achieve the target of food security, food for all, within the given time frame. बिल्कुल, तो मार्च 2021 है वो जो लक्ष्य रखा गया है कि पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना को लागू किया कर लिया जाएगा, और इस लक्ष्य को पाने में हम बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Many thanks to all our guests and to all our viewers as well for joining us on the show. Atmanirbhar Bharat will be back again tomorrow at this time itself, both on DD News and DD India. Meanwhile, stay tuned for news and updates as they continue. Namaskar. Namaskar.